I can see there are some new faces like they have joined today. So let me give them my introduction again. So my name is Shahmeer, as you guys already know, and I'm doing my MSc in management, having majors in marketing and international marketing. Besides that, I work for Mizan Bank, Dubai Islamic. I work for IBL as a service quality auditor. Then I joined Vivo Smartphone as assistant brand manager, and that was my last job. So we have discussed yesterday like what is the difference between resume and CV and how you can make all these things. So I have like cleared myself, and I can like you guys have already have good idea about that, like how we can make our CV and resume. So if you guys have any questions, so we can discuss all these things at the end of the presentation related to the yesterday's session, right? So today we will be discussing the tips for how to succeed in a job interview. Okay, so here like we can discuss some scenarios also. I will discuss my practical example also. So yeah, you guys will be learning a lot from here, and I have invited my friend Hira Rauf, and she's a freelancer, and she can also tell you her experience, and she can like you can also learn from her experience also. So yeah, today's session is going to be very interesting and very you can learn a lot of things here. So हम start करते हैं. हमारा जो first session है आज का वो है जॉब इंटरव्यू के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्वेश्चंस आप को फेस करने होंगे और उसके क्या रिप्लाईज आप दे सकते हो. तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हैं. उसमें एक साकिब भाई हैं जो हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं. वो बैट एट होम के अंदर मैनेजर सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वहाँ पे. वो अब अपनी टीम को लीड कर रहे होते हैं, तो उनसे भी हम पूछेंगे कि वो हमें क्या सजेस्ट करेंगे और हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको भी. सो स्टार्ट करते प्रेजेंटेशन. So today's agenda would be we are going to discuss 8 important things that you need to remember when you go for an interview. Then we have a question answer session. Then I'll proceed with LinkedIn, how to use LinkedIn, and then again we have a question answer session that you can ask questions related to like everything, like why do we use LinkedIn and what are the tips that by which we can make our LinkedIn profile attractive for our recruiters, right? So let's start with the first topic. The first and most important thing that you guys need to remember when you go for an interview, and आपको जब अपने आप को प्रिपेयर करना होगा उसके लिए the first thing is very important, that is conduct research on the employer and hiring manager job opportunity. So research जो है that is very important and that is very beneficial when you go for an interview. तो उसमें यही है कि आप जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस जॉब की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में आप पढ़ के जाएं. अगर आपको इसके बारे में डिटेल नहीं पता वो पढ़ के जाएं. उसके साथ साथ जो आपका हायरिंग मैनेजर है, सही है, तो उसके बारे में देखें कि उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको उनकी वेबसाइट्स पे और उनके पोर्टल्स वगैरह पे मिल जाती है. तो वहाँ से भी आप उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. नहीं तो फिर आप कोई अगर आपका जानने वाला है, अगर आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उससे उसके बारे में पूछ भी सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम उनके बारे में अपने जो कोलीग्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि हमें इस बंदे के साथ डील कैसे करना होगा. तो हम अपना थोड़ा होमवर्क करके हम लोग चले जाते हैं, सही है. सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू. सो फर्स्ट थिंग इज success in a job interview starts with a solid foundation knowledge on the job seekers part, right? So जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च जरूर करके जाएं कि वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उनकी ब्रांचेस कितनी हैं, और जो इस जॉब के लिए आप जा रहे हो तो उस जॉब का क्या क्राइटेरिया है और उसके लिए किस तरह की क्या कहते हैं एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं और क्या टास्क होते हैं उनके, उसके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं, which is going to help you a lot when you go for an interview. Second point, you should like understand the employer, the like requirements of the job and the background of the person or the people interviewing you. अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है, इससे आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप वो कहते हैं ना आपको बहुत क्विक थिंकिंग करनी होती है, क्विक डिसीजन लेना होता है, जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को देख के भी जो है ना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे मुझे किस तरह की बात करनी है. फॉर एग्जांपल आप उसकी एक्साइटमेंट देख के भी, फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे स्माइल करते हुए मिल रहा है तो दैट मीन्स कि वो चाहता है कि वो आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें जाने और आप ज़्यादा बोलो उसके अंदर.
तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसमें यही करता था कि सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे बिल्कुल क्या कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज करता है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को जज करना स्टार्ट कर दें कि ये इस मूड में है या नहीं, कि ये मुझसे क्या कहते हैं मेरा इंटरव्यू अच्छा लेगा, या क्या इसकी क्या कहते हैं इंटेंशंस हैं, और ये क्या मुझसे बुलवाना चाहता है और क्या मुझसे पूछना चाहता है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी इसके अंदर। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोर रिसर्च यू कंडक्ट द मोर यू विल अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयर एंड द बेटर यू विल एबल टू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो रिसर्च इज द मेन की। अगर आपके पास रिसर्च नहीं है, जब मैं जो बाकी के पॉइंट जब आपको बताऊंगा ना, उसके अंदर फिर आप बिल्कुल उस पर जीरो हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने कंपनी की रिसर्च नहीं की भी होगी ना, तो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है कि आपको जब कंपनी के बारे में नहीं पता, और जिस जॉब के बारे में आप जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के लिए भी आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस जॉब के लिए मैं आया हूँ, तो उस जॉब में किस तरह का कैंडिडेट रिक्वायर्ड है और उसके क्या टास्क हो सकते हैं। इंटरनेट भरा हुआ है, वीडियोस भरी हुई यूट्यूब पे, वहाँ पे उस जॉब डिस्क्रिप्शन को डाल के उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं, सिनेरियोज आप बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि जब इंटरव्यू के अंदर जाते हैं ना, आप ये समझे कि बस ये आपका लास्ट चांस है, और यहाँ आप जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। और ये सारी चीज़ें जो है आपकी रिसर्च के थ्रू ही आप को यानी कि हेल्प आउट हो सकती हैं। Then we go for the second important thing, that is review common interview questions and prepare responses. So अभी मैं आपको इसके अंदर एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जिसके अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आप तकरीबन जितने भी इंटरव्यूज में आप जाएंगे उसमें 80 to 90% ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो आप यानी कि आप पहले से इसके बारे में प्रिपेयर हो सकते हैं। और जो रिस्पॉन्सेज हैं, और रिस्पॉन्सेज आपको जो प्रिपेयर करने हैं, वो आप यूं कर सकते हो कि आप कोई भी सिचुएशन, कोई भी फेक सिचुएशन आप बना सकते हो कि मैं इस टाइम पे ये चीज कर रहा था। यानी कि जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में वो सिर्फ वन लाइनर आंसर नहीं पूछ रहा था, वो चाह रहा था आप अपने आप को डिस्क्राइब करें। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि वो आपके बारे में जानना चाह रहा है। तो आप सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, फेक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो भी क्रिएट करें आप इतने कॉन्फिडेंटली करें कि अगला बंदा आपको पकड़ ना पाए। मैं आपको अपनी भी एग्जाम्पल अभी दूंगा आने वाले 10-15 मिनट के अंदर, जब हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, कि मैंने किस तरह से फेक सिचुएशन क्रिएट कर करके इंटरव्यूज क्लियर किए हैं। क्योंकि भाई आपके पास जो इंटरव्यू है वही आपका एक लास्ट और फाइनल पार्ट होता है, जिसमें आपको या तो यस मिलेगी या तो नो मिलेगी। तो आप अपना जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। So the first point, what we like, first point says that another key to interview success is preparing responses to expected interview questions, as I've already told you in the beginning. Then we have first inquire as to the type of interview to expect, which you can do by asking your contact person at the organization. अब इससे ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू के अंदर जब गए हैं, तो आप देख सकते हैं जब आप यानी कि कंपनी में एंटर होते हैं तो रिसेप्शन पे लोग खड़े हुए होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो लंच ब्रेक के अंदर भी लोग घूम रहे होते हैं। आपका किसी एक को भी रोक के ऐसी पूछ सकते हैं उससे कि यहाँ पे इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है। जैसे हम लोग सभी करते हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कि यार यहाँ पे जो है वो किस तरह इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू जब फर्स्ट क्लियर हो जाता है, फिर सेकंड इंटरव्यू पे क्या सीन है और कौन लेता है। तो इस तरह आप ये रिसर्च भी वहाँ जाके कर सकते हैं और अपने रिस्पॉन्सेज प्रिपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो इस फेज से गुजर चुके हैं। तो आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप कैसे उनसे बात करते हैं और किस तरह उनको आप मोटिवेट करते हैं अपनी तरफ कि वो आपको इन्फॉर्मेशन इतनी इस टाइप की दें। तो आपको वैसे लोग मिल जाते हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मुझे तो हमेशा मिल जाते थे, और फिर उनसे उसी वक्त नंबर भी एक्सचेंज हो जाते थे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनसे मिल जाती थी, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प आउट की भी इंटरव्यूज़ के अंदर। तो आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्लेवर होना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद फेस की हैं, और आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप को आगे प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरव्यूज देने में और क्लियर करने में। योर गोल इज composing detailed yet concise responses focusing on specific example and accomplishment। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जैसे ये रिव्यू कॉमन जो क्वेश्चंस हैं, इसके आप रिस्पॉन्सेज कैसे प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने अब आपको स्टार्टिंग में बताया, आप सिचुएशन क्रिएट करें। वो अगर आपसे पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिसमें आपको लगा कि आपकी स्ट्रेंथ यूज हुई है, तो आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि मैं इस टाइम पे यानी कि जब मुझे फॉर एग्जांपल मल्टीटास्किंग स्किल्स हो गई, उसके अंदर आप कोई भी अपनी रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में इस क्या कहते हैं इवेंट के अंदर
पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसके अंदर मुझे जो है वो मार्केटिंग टीम को भी देखना हो रहा था, उसके साथ साथ मुझे अपनी कॉन्फ्रेंस को भी देखना होता था। तो इसके अंदर दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना और साथ साथ टारगेट्स भी पूरे करना है कि आपको इतने व्यूअर्स लेकर आने हैं और इतने कैंडिडेट्स आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लेकर आने हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बस वो जानना चाहता है कि आप कितना बोल सकते हो इंटरव्यू के अंदर। तो अगर आप वन लाइनर आंसर दे रहे हो, खामोश होकर बैठे हुए हो वो, और यस और नो के अंदर ये रिस्पॉन्स आप उनको दे रहे हो, तो फिर आपके चांसेस बहुत लो होते हैं कि आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर कर सकें और वो आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल करें। फिर उसके बाद गुड टूल फॉर रिमेंबरिंग योर रिस्पॉन्सेज इज टू पुट देम इनटू स्टोरी। नीचे वाला ब्लैक वाला भी टूटा है, एक साइड से टाइल साइड ठोका है, और किसी ऊपर का से गिर माइक हुई मार रहा था, वो भी हुआ है। और ये साइज कब लिया था इसने, प्लास्टर होने के बाद लिया किसी था का पहले? माइक ऑन हुआ है और वो घर के सौदे सर्फ की आवाजें आ रही। प्लास्टर होने से पहले ही लिया था। ये होता है, ये होता है, ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, ये जब तक ना हो पता नहीं चलता कि हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये होना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो ये भी प्रेजेंटेशन का पार्ट था जो मैं आपको बता नहीं पाया, कि कुछ सरप्राइजेस मैंने रखे हैं जो आपको ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मिलते रहेंगे, शायद मेरी तरफ से भी मिले। तो ये सीन है। उसके अलावा अच्छा, ये मैं जो आपको बता रहा था, ये वाला पॉइंट, अ गुड टूल फॉर रिमेंबरिंग योर रिस्पॉन्सेज इज टू पुट देम इनटू स्टोरी, फ्रॉम दैट यू कैन टेल इन द इंटरव्यू। स्टोरीज, भाई स्टोरीज बतानी है, आप भाषण देने होने वाले चाहिए, आप बस चबाएं अगले वाले बंदों को, वो किस तरह चबाना है, स्टोरीज बताएं, यानी कि फेक स्टोरीज। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा एट द एंड, तब आपको पता चल जाएगा मैंने क्या स्टोरी बनाई थी। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, मीटिंग, ओके। सो ये चीजें और ये वो क्वेश्चन हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे तकरीबन जो इंटरव्यूज है उसके अंदर पूछ सकते हैं वो लोग। फॉर एग्जांपल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे वो पूछेगा, इसका रिस्पॉन्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा जिस इंटरव्यू में आप जाएंगे। देन हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। तो आप हैंडल और मतलब कि जो प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सिचुएशन आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है इसके रिस्पॉन्सेज आप यू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को यूट्यूब पे डाल के देख सकते हैं कि इंटरव्यू के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है किस तरह आप इसका रिस्पॉन्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो बहुत, वो कहते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस दैट यू कैन ऑलवेज फेस व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू। देन वी हैव डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल। ठीक है, वर्क स्टाइल के बारे में पूछ सकता है, आप जो है मल्टीटास्किंग है या फिर आप पैनिक कर जाते हैं। तो देखो भाई, इंटरव्यू के अंदर अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको अपनी बुराई तो करनी ही नहीं है, सही है। और वीकनेस लोग यहाँ पे बता देते हैं कि भाई हमारी वीकनेस ये है, और वीकनेस आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके जॉब से रिलेटेड ना हो। बात समझ आ रही है आप लोग को? हम लोग क्या करते हैं, जॉब से रिलेटेड बता देते हैं कि मैं जो हूँ, जब मुझे स्ट्रेस हो जाता है, जब मेरे पास ज्यादा वर्कलोड आता है, तो वर्कलोड तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। वीकनेस आपको ऐसी बतानी है जो आपकी जॉब को अफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बता सकते हैं, आई एम नॉट गुड इन स्विमिंग। ठीक है, आई एम नॉट गुड इन जिमिंग और रनिंग और प्लेइंग अदर थिंग्स। सही है, तो ये आपकी जॉब को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये वीकनेस आप इस तरह बता सकते हैं। वो पूछेगा यार हर बंदे की वीकनेस होती है, तो आप ये इनको बता सकते हो कि वीकनेस जो है वो मैं इस तरह हूँ कि मैं जो हूँ वो ये स्विमिंग नहीं कर सकता, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो बस जॉब से रिलेटेड ना हो, आपके वर्क एनवायरमेंट से रिलेटेड ना हो, दैट इज योर वीकनेस, दैट शुड बी योर वीकनेस। लोग बता देते हैं कि यार बिल्कुल, like they were very true. I have seen a lot of people when we had a group interview, and they were telling their weaknesses. Okay sir, when I get a lot of assignments, so I always get panic and stuff. Bhai, are you stupid or what? तुम उसको अपनी वीकनेस वहां पे बता रहे हो जो तुम्हारी जॉब से रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी, अपनी वीकनेस ऐसी बतानी जो जॉब से रिलेटेड ना हो। देन वी हैव व्हाट आर योर व्हाट आर योर पैशन। पैशन जो आपको बताना है ना, सबसे पहले तो उसको ये बताना है भाई मुझे कंपनी ज्वाइन करनी, मेरा पैशन ये है। और लेकिन डायरेक्टली इस पे नहीं आना कि कंपनी ज्वाइन करनी है, आप ये उनको बता सकते हैं पैशन के अंदर कि मेरा पैशन ये है कि मैं जिस पोस्ट के लिए आप आए हो ना, उस पोस्ट के बारे में बताना शुरू कर दो कि मेरा शुरू से ये पैशन रहा है कि मैं, फॉर एग्जांपल, आई वाज वर्किंग एज अ सर्विस क्वालिटी ऑडिटर एट मिजान बैंक। सो मैंने बताया कि मुझे अच्छा लगता है लोगों को ट्रेन करना, और मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए उसके अंदर टीम वर्क मैंने देखा, क्योंकि सर्विस क्वालिटी के अंदर सारा जो गेम है वो यही है कि आपको विजिट परफॉर्म करना है, वहां पे जाके फिर आपको ब्रांच मैनेजर्स हो गया, उनसे फिर आपको एट द एंड रिपोर्ट साइन करवानी होती है। वो रिपोर्ट भी आपको साइन करके नहीं देता, बोलता है इस पे तो आपने नेगेटिव कुछ कमेंट्स लिखे में, जो कि जब एरिया की मीटिंग होगी, एरिया में हम लोग को प्रॉब्लम होगी, तो उनसे वो चीजें अग्री करवाते हुए सॉल्व करवाना। तो ये सब चीजें जो है वो मैं ऑलरेडी पढ़ के गया था उसके बारे में। तो मैंने फिर अपने जो एक्सपीरियंस थे ना, जो मैंने कॉन्फ्रेंसेस वगैरह और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई थी,
उससे रिलेट करते हुए मैंने फिर बताया कि दैट इज व्हाई आई वांट दिस जॉब। तो फिर उसको समझ में आया कि हाँ ये इसलिए ये चीज कर रहा है क्योंकि इसके बाद प्रायर एक्सपीरियंस इस चीज का रहा है, तो ये इसका इंटरेस्ट है। इस तरह आप अपना पैशन कंपनी को लेके शो भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप ये उनको बोल सकते हैं कि जैसे कंपनी की जो लैंडमार्क्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो आप उनको बताओ कि ऐसी चीज उनको बताओ जो उनको खुद अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता। ये सारी चीज रिसर्च से आएगी। जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको इस पूरे सेशन का बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, बाकी की जो पार्ट्स है ना, वो फिर आपके क्या कहते हैं, वो कहते हैं उस पर आप फिर काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो आपकी फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड है, देन यू गो फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। there are a lot of ways, but what I preferred, like to go like use my tactics and my strategy in interview, I use all these 8 kind of things. So I hope कि आप लोग को ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। arrive on time, which is very important for the interview and prepare for the success. टाइम पे आपको जाना है। और बहुत दफा ये होता है कि हम लोग लेट भी हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो आधे घंटा पहले पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग जितना पहले पहुंच, फॉर एग्जाम्पल 15-20 मिनट पहले अगर आप पहुंच जाते हैं अपने इंटरव्यू से पहले, तो आप वहाँ के जो डायनामिक्स है ना, जो इन्वायरमेंट के, वो हम नोटिस कर सकते हैं कि यार यहाँ पे लोगों को देखें, आप उनको ऑब्जर्व करें। और जो लोग इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, जल्दी आने का फायदा ये होता है, जो आपसे पहले बंदा इंटरव्यू के लिए जाएगा ना, सही है, तो आप जब वो इंटरव्यू से निकल के आ रहा होगा, आप उससे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में क्या पूछ रहा है और वो क्या चीज है। तो इस तरह से भी आपको काफी आइडिया हो सकता है और आप अपने आने वाले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, अगर आप थोड़ा सा जल्दी जाते हैं अपने इंटरव्यू से पहले, तो आप ये चीजें भी वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उससे पूछना कि भाई क्या इंटरव्यू के अंदर क्या चीजें पूछ रहा है, वो उसका मूड कैसा है, स्टफ लाइक दैट। सो और आप डायनामिक्स भी देख सकते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह। और अगर पैनिक नजर आ रहा होगा कि लग रहा है कि वहाँ पे टारगेट्स वगैरह आए हुए हैं और मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो ये राइट टाइम नहीं है इंटरव्यू का, मतलब कि आप उस तरीके से अंदाजा वहाँ पे लगा सकते हैं कि आप और क्या क्या वहाँ पे कर सकते हैं। सो ऑलवेज अराइव ऑन टाइम व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू। strive to arrive about 15 minutes before your scheduled interview to complete additional paperwork and allow yourself like time to get settled. So I've already discussed in the first point. Then we have arriving a bit early is also a chance to observe the dynamics of the workplace. Then we have um, the day before the interview, pack up the extra copies of your resume, CV, and reference letter. If you have a portfolio or samples of your work, bring those along to you. So मैंने आपको जैसे कल बताया था, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो आपको अपना CV लेके जाना है, लाइक नॉट रेज्यूमे। तो उसके अंदर पे आपका ये होता है कि आप ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाएं। वो आपसे एक्स्ट्रा कॉपीज भी मांग सकता है, क्या पता वो आपसे आपकी पिक्चर भी मांग ले कि यार मैं आपका टेस्ट अभी ले रहा हूँ। क्योंकि जो मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें ये हुआ था, मेरा मीज़ान का जब इंटरव्यू हुआ था, तो मेरा एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज हुए थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में इंप्रेशन ऐसा क्रिएट किया था उस पर। तो उसने बोला कि आप थोड़ा वेट कर लो, हम आपका सेकंड इंटरव्यू करवा रहे हैं ग्रुप हेड से। फिर मेरा ग्रुप हेड से 1 से 2 घंटे के बाद उससे इंटरव्यू हुआ। फिर थर्ड इंटरव्यू हुआ था हमारा जो सर्विस क्वालिटी का हेड था, उससे इंटरव्यू हुआ। फिर उसने बोला कि आप रुक जाओ, आपका 4:30 पे टेस्ट होगा। तो यानी कि 9 to 5 जॉब टाइप का सीन हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि मेरा फिर 4:30 बजे टेस्ट हुआ, और टेस्ट के बाद ही उन्होंने मेरी सारी पिक्चर वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे ले लिए थे उन्होंने, सही है। तो ये भी होता है कि अगर आप इंप्रेशन अच्छा अपना क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है कि आपके सारे इंटरव्यूज वो जो है वो उसी वक्त कंडक्ट कर ले, जो कि मेरे साथ हुआ था। तो मेरी सारे जो इंटरव्यूज एक दिन में हुए थे, और मेरी 1-2 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आ गई थी कि आपको इस तारीख से ज्वाइन करना है। वरना मीज़ान जो है ना, वो बहुत ही, उनका प्रोसेस बहुत स्लो है, दुबई इस्लामिक की तरह। वो कि अगर एक इंटरव्यू लेते हैं, दूसरा वो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद कॉल करेंगे, जब आपने होप खो दी होती है। तो ये भी होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं। हो सकता है कि एम्प्लॉयर को आप उसी वक्त पसंद आ जाएं, और वो बाकी की जो लाइक दूसरे इंटरव्यूज है, जो फॉर्मेलिटीज होती है आपको हायर करने के लिए, वो फर्स्ट डे ही पूरी कर लें। So that is very important. You should like keep all those the like necessary documents with you when you go for an interview. Might you get lucky and you get selected for the position that you are looking for. So let's move on to the point. Remember to pack several pens and pad paper. ये मतलब कि यार आप रख लो, लेकिन है कि ये वो पॉइंट है थोड़े जो आपको देखना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। ये चीज़ होनी चाहिए। समटाइम्स जो इंटरव्यूअर वही भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये कितना प्रिपेयर्ड आया है। तो उसके पास पेन भी है, पैड भी। फॉर एग्जांपल वो भी आपको ऐसी बात बता रहा है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए और ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो आप मतलब कि उस पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि आप उसकी बात को जो है ना वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप
पैड एंड पेपर निकाल के बोलो सर ये आप बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, ये तो बड़ा काम आएगा। भाई इंटरव्यू में ये करना पड़ेगा, ये अगर आपने मंजन नहीं बेचा तो आपका कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी, सर आप तो ग्रेट है, आपने मुझे बुलाया है तो इसका मतलब मुझे आपसे सीखना है। फिर बाद में जाके कंपनी में आपको धमाल मचाना है मचा दे, लेकिन स्टार्टिंग में जब इंटरव्यू क्लियर करना होता है ना, तो वो समझ लें कि वो वही है जिससे आप रिश्ता मांगने के लिए जा रहे हैं। आप रिश्ता मांगने जाते हैं कैसे होता है कि आप बिल्कुल हर चीज दिखाते, भाई मैं इतना भी कमाता हूँ, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं 5 वक्त का नमाजी। तो इस तरह आपको इंटरव्यू पर दिखाना है, इसको खुश करना है, जितना खुश करेंगे। तारीफ सुनना भाई हर किसी को अच्छा लगता है, तो आप उसकी जितनी तारीफ करेंगे उसको दिखाएंगे कि हाँ भाई मुझे ज्वाइन करना है और आप जो बातें बता रहे हैं वो बहुत बेनिफिशियल है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि आपको ये जॉब मिल सकती है। Then we'll move to the final point as you get the officer shut off your cell phone. This is very important. Sometimes क्या होता है जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमारी मतलब कि फ़ोन बज रहा होता है और हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो हमेशा जब इंटरव्यू देने के लिए जाए तो 1 घंटा तो भी फ़ोन को बंद आप रख दें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। सो अब नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, वो है मेक गुड फर्स्ट इंप्रेशन टू एवरीवन यू एनकाउंटर। अब वो फर्स्ट इंप्रेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपकी ड्रेसिंग मैटर्स अ लॉट, कि आप किस तरह ड्रेसअप होके जाते हो। जैसे फीमेल्स हैं, फीमेल्स का जो फॉर्मल अटायर होता है उसके अंदर जो शूज़ हैं वो हील, जो नॉर्मल हील होती है वो आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर पहन के जानी होती है उनको, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देने जाने, क्योंकि फीमेल्स का आई थिंक फॉर्मल अटायर इतना मेट अब इफ दे आर डूइंग हिजाब सो दैट इज परफेक्ट, सो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर वो हिजाब नहीं कर रही हैं और नॉर्मली जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है वो हील्स ज़रूर पहन के जाइए, तो कि हील्स जो है वो आपके फॉर्मल अटायर के अंदर आता है, यानी कि फॉर्मल शूज़ कह लें जैसे फीमेल्स के। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। और मेंस का ये है कि भाई आपको प्रॉपर जो है वो टाई वगैरह जो नॉर्मली होता है वो आपको पहन के, साथ साथ आप जो है कोट भी कैरी कर सकते हैं। कोट कैरी करेंगे तो यू लुक मोर फॉर्मल एंड लाइक मोर इनटू इट। So these are some things, and the first part of the cardinal rule for interviewing: be polite and offer a warm greetings to everyone you meet, from parking attendant or receptionist to the hiring manager. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप स्टार्टिंग में ही लोगों से अच्छे ग्रीट करते हुए अपने इंटरव्यू की तरफ जाएंगे ना, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि यार he has a smiling face, or like he has shown some passion for this interview. So passion is very important, और हमेशा स्माइल करते रहें वहाँ पे, क्योंकि वो यही चीज़ देखता है। जितना आप विदाउट एक्सप्रेशन बैठे रहेंगे ना, उतना ज़्यादा उसको चांसेस मिलेंगे कि वो आपको ट्रैप कर सकता है अपने क्वेश्चंस के अंदर। सही है। सो ये है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स होके बैठे और ये सोच के, जैसे मैंने हम लोग को कल बताया था, कि सोच के आपको ये जाना है कि ये इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है, मैं आया हूँ यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए। जो डर है ना, डर जब अंदर से खत्म कर देंगे तो इंटरव्यूज आपके फौरन क्लियर हो जाएंगे। तो ये वो स्ट्रेटजीज है जो मैं फॉलो करता था, लाइक व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू टू दीज ऑर्गेनाइजेशन। सो और सबसे बड़ा इंटरव्यू जो मैंने क्लियर किया वो एम्बेसी का, वो भी मैं आपको सीन बताऊंगा कि मैंने वहाँ पे क्या तमाशा किया था, तो वो भी बात करेंगे उसके बारे में लेटर ऑन। एम्प्लॉयर्स ऑफन आर क्यूरियस हाउ job applicants treat staff members, and your job offer could easily I think something is coming here. All right, job easily be detailed if you are rude or arrogant to any of the staff. So ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पार्किंग में जा रहे हो, सही है, तो आपका कभी कभार झगड़ा हो जाता है, वो आपको पार्किंग करने नहीं दे रहा होता, बोलते हैं यार ये स्टाफ की पार्किंग है, आप जाके बाहर पार्किंग करो। आप बोलते हो मैं इंटरव्यू देने के लिए आया, तो मुझे आप अलाउ करो पार्किंग करना। सम टाइम वहां से भी झगड़ जाते हैं, तो वो जो आप मेन जो बंदा है ना जिससे आप पार्किंग में लड़ रहे, जो गार्ड है, वो भी ऐसा बंदा होता है, वो आगे जाके बता देता कि भाई ये इस तरह का बंदा है, जरा एरोगेंट टाइप का है, तो जरा ये वो। तो वहीं से फिर आपके जो है ना, जब आपका स्टार्टिंग में मूड खराब हो जाएगा ना, आपका इंटरव्यू कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर दिमाग में वही बात चल रही होगी, अभी मेरा उससे झगड़ा होकर आया, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, मैं तो टाई लगा के आया हूँ, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, गार्ड ने मुझसे बदतमीजी कर ली। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल ना, वो कहते हैं ना, शरीफ इंसान बन जाए आपको, यानी कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कोई आपको कुछ भी कह दे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। और ये आप चीजें अपना के देखें, आपको काफी बेनिफिट होगा जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर जाते हैं। व्हेन इट इज टाइम फॉर द इंटरव्यू, कीप इन माइंड दैट फर्स्ट इंप्रेशन the ones interviewers make in the first few seconds of greeting you can make or break an interview. Make a strong first impression by dressing well, arriving early, and when greeting your interviewer, stand, smile, make eye contact, and offer a firm handshake.
द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर आई कॉन्टैक्ट। हमारा ये होता है हम आई कॉन्टैक्ट उनसे बना नहीं पाते। जब आई कॉन्टैक्ट आप नहीं बनाओगे तो उससे क्या होता है, उसको ये चीज का शक हो जाता है कि यार ये बंदा जो है ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो इसने की भी नहीं है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है या फिर अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं करना। तो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आई कांटेक्ट बना के बात करते हो, भले आप उसको कोई स्टोरीज भी बता रहे होंगे तो वो चीज को बिलीव कर लेगा और आपका इंटरव्यू आराम से क्लियर हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर ड्रेसिंग एंड योर आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे जाके। तो आई कॉन्टैक्ट आपको मेंटेन करना है, वो आई कॉन्टैक्ट से ही आपको जज कर लेगा ये बंदे को इंटरव्यू में आगे कैरी ऑन करवाना है या नहीं करवाना। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग को आई कांटेक्ट का बहुत ख्याल रखना है जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएं। इसके साथ रिमेंबर दैट having a positive attitude and expressing enthusiasm for the job and employer are vital in initial stages of the interview. Studies shows that hiring managers make critical decision about job applicants in the first 20 minutes of the interview, and this is true, this is proven. You can see a lot of research paper which has proven this already, that in first 20 minutes the interviewer can judge your personality. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू शो देम इंथुजियाज्म। अब वो कैसे कि यार मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है, और मतलब कि आपसे वो जो भी आपके बारे में पूछे ना कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, और आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो आप इतना पैशनली उसको वो चीज बताएं कि मैंने ये चीज यहाँ पर भी की थी, ये मेरे प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे मैंने ये चीज की थी। तो उसको एज अ फ्रेंड लेके बात करें, यानी कि अपनी कर्टेसी मेंटेन रखें। लेकिन आप जितना ज्यादा उसको पैशन शो कर सकते हैं ना, बोले कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसको बताओ यार मैं ये जॉब इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसके अंदर मेरी इस चीज की लर्निंग होगी, मेरा ये गैप है, इसको मैं ब्रिज कर सकता हूँ। तो जितना ज्यादा आप उसको जॉब, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑलरेडी मतलब पहले से आप जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अपनी पढ़ के जाएं। जब आप पढ़ के जाएंगे ना तो उससे फायदा क्या होगा आपको, कि आपसे जब वो इस तरह के सवाल पूछेंगे ना, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, आप उसको बहुत अच्छा एक आंसर दे सकते हैं, जिससे आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आउट करे। So that is very important. That we'll move on to the fifth point. That is, remember body language, avoid bad habits. So what are those bad habits? While the content of interview responses is paramount, poor body language can be distraction at best or a reason not to hire you at worst. For example, body language की बात करते हैं कि अब जैसे कि मैं इंटरव्यू के अंदर एंटर हो रहा हूँ, ठीक है, इंटरव्यू के बैठा और बैठती ना मैं ऐसे झुक के बैठ गया यूं करके। आपने देखा होगा कि हमारे साथ बहुत दफा इंटर होता है इंटरव्यूज में, हम ऐसे अपने शोल्डर्स को झुका के बैठ जाते हैं और हाथ ऐसे हाथ में हाथ यूं करके रख के बैठ जाते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, आप ये सोचें कि ये भी एक वही बंदा है जिससे हम डेली मिलते हैं, हमारे दोस्तों की तरह। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको बैठना है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आराम से आप बैठे रिलैक्स होकर, चाहे तो अपनी चेयर को थोड़ा बहुत मूव भी कर सकते हैं आप अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए। एक चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो क्या नहीं होती, हमारे हमारे पैर हमारे कंट्रोल में होते। तभी जो है आपने देखा होगा डेस्क के नीचे ही हमारे पैर की होता है, क्योंकि पैर ऐसी चीज है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अपना आप अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो शिवरिंग होती है ना आपके पैरों में, वो आप कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना भाई, वो ये है कि आप लोग जब आप बैठे ना, तो आप अपनी जो चेयर है, चेयर के साथ हल्का सा ऐसे मनूवर कर सकते हैं, या ऐसे हल्का फुल्का मूव होते हुए उसको बता सकते हैं, ताकि आप जो अपनी जो शिवरिंग है ना आपके जो पैरों में, उसको आप हाइड कर सकते हैं। बहुत दफा ये होता है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं आप ना कांपना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो है वो बहुत ऊपर से आता है। जब आप बहुत ऊपर से आता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है हमारी जो इंग्लिश स्किल्स है ना, वो इतनी हम डेवलप नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के 4 इयर्स के अंदर आपको करना क्या, एटलीस्ट अपने इंग्लिश को आप लोग पॉलिश कर लें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, आपको जो इंटरव्यू में जिताएगी, जो हमेशा मुझे जिताती थी, वो सिंपल दो चीजें। एक तो आपकी एक्सेल पे कमांड होनी चाहिए, यानी कि एमएस ऑफिस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपकी लैंग्विस्टिक स्किल अच्छी है ना, तो यकीन करें आप कोई भी इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हैं। और मैं स्पेशली उन लोगों को बता रहा हूँ जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक है। बाकी जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव साकिब भाई है, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो उनका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उन लोग के इंटरव्यूज के अंदर ज्यादातर जो है वो टेक्निकलिटीज पे बात होती है, उनके प्रोजेक्ट्स पे बात होती है कि आपने एसक्यूएल पे, जावा पे, या आपने मशीन लर्निंग, इन चीजों पे काम किया हुआ नहीं किया हुआ, तो उससे रिलेटेड उनका इंटरव्यू लाइक इट इज वेरी डिफरेंट। बट हमारे इंटरव्यूज जो मैनेजमेंट के इंटरव्यूज होते हैं, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सो इनके अंदर ये सब चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, क्योंकि आप जो है वो फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं,
जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स कौन लेकर आता है इन लोग के लिए, वो मैनेजमेंट के लोग ही लेकर आते हैं। वो अपनी प्रेजेंटेशन आगे लाइक देते हैं, पोर्टफोलियो परफॉर्म कर लाइक शो कराते हैं उनको। उसके बाद ही जब आप लोग फ्रंट एंड पे अच्छे होंगे तो जाके आपको बैक एंड वालों के लिए प्रोजेक्ट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? सो यू हैव टू बी like for example very precise when it comes to dressing, when it comes to body language, and you have to be very confident। अपने अगले बंदे पे आपको इस तरह ऊपर से आना है जैसे उसको कुछ नहीं पता, आपको सब चीजें पता है। Body language is very important thing in an interview, okay? So let's move on to the second and third point, effective form of body language, smiling and eye contact। जो effective body language आप कह सकते हैं वो है आपकी आई कांटेक्ट और आपका स्माइलिंग फेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको हंसते हुए स्माइल करते हुए कोई चीज बता रहा हूँ, सो वो इंटरेस्टेड होगा मुझसे मेरे सवाल पूछने में। अगर मैं उसको ऐसे बैठ के बात करूंगा, नो सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई वर्क हियर समथिंग लाइक, ये वाला जो सीन है ये करना है आपको, बिल्कुल उससे रिलैक्स होकर बात करनी है। रिलैक्स होकर बात करेंगे आप, और ये दो चीजें फॉलो करनी है, स्माइलिंग एंड आई कॉन्टैक्ट, तो आपका बॉडी लैंग्वेज को बहुत परफेक्ट हो जाएगा और आपको बैठना बिल्कुल नॉर्मल ही है। ये नहीं कि आप इस तरह, हम लोग की आदत है हम लोग यूं बैठ जाते हैं हाथ रख के, नो। आपको यू हैव टू बी रिलैक्स एंड यू कैन जस्ट इस तरह आप इंटरव्यू दें जैसे आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके सामने सिनेरियोज लगे, जब वो पूछता है ना आपसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा उससे डील आपको कैसे करनी है और कैसे आप उसको उसके क्वेश्चन में फंसा सकते हैं। तो दैट इज लाइक फ्रॉम देयर यू कैन like get this job very easily and they will call you for the job like for the second interview for sure अगर आप ये चीजें वहां पे करते हैं। solid posture, active listening and nodding। solid posture and active listening, active listening is very important कि जब वो आपको कोई चीज बता रहा होगा ना, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दूंगा। अगर आपकी एक्टिव लिसनिंग नहीं है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, जो मेरे साथ होते होते रह गई थी ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद में। जब मैं इंटरव्यू अपना दे रहा था तो मुझे पता था ये शायद ये सवाल दोबारा पूछेगी, मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊंगा तो फिर आप जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। और मेरे साथ ये एक्चुअली हो चुका है। अगर एक्टिव लिसनर नहीं होता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स वहां पे हो जाती। देन वी हैव the reminder forms of body language, slouching, looking off in the distance, playing with pens, and think something is coming here. Okay, all right, and brushing back chair and touching faces, chewing gum and stuff like that. So these are some points that you shouldn't follow, and these are the things that can lead you to exit from the job interview. So ये आपको चीजें नहीं करनी है, ठीक है। बाकी मैं स्लाइड्स भी आप लोग से शेयर कर दूंगा तो आप लोग इसको इन डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आस्क इंसाइटफुल क्वेश्चंस, ठीक है। अब इंसाइटफुल क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? अब मैं गाइस कैन यू जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट नीड टू चेक माय कैमरा वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, ओके? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, okay. So insightful question. Studies continually shows that make a judgment about an applicant interest in the job by whether or not the interviewee asked the question. So even if the hiring manager was thorough in his or her discussion about the job opening and what is expected, you must ask a few questions। अब मैं आपको बताता हूँ कि उससे आप questions क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इतने इंटरव्यू जैसे वो पूछता है कि ask any like do you have any question about the company or this job and stuff, so here you can do the reverse psychology। what you need to do is आपसे जो उसने सवाल पूछे ना उनमें से कुछ आप कोशिश करें रिमेंबर कर लें, उनको बोलें कि सर जब आप इस सिचुएशन में थे तो आपने क्या किया था, और आपके पास ऐसी कौन सी ऐसी यानी कि सिचुएशन आई थी जिसके अंदर आपको लगा कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, या मेरा ये अभी तक का सबसे मुश्किल टास्क था इस जॉब को लेके, जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपके पास सबसे डिफिकल्ट टाइम क्या है सर, आप मुझे अपनी थोड़ी सी स्वॉट एनालिसिस करके बताएं, कहाँ पे आपको लगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी वीकनेस थी। इस तरह के सवाल अगर आप उससे पूछेंगे ना तो फिर वो है वो खुद बताने में भी इंटरेस्टेड रहेगा कि यार ये बंदा जो है वो खाली बताने नहीं आया, वो मेरी सुनने भी आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हैं। कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं कि सर आप बताएं कि आपने कभी कोई इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाई है, वो इंप्लीमेंट करवाने में कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ सर्विस क्वालिटी की, तो सर्विस क्वालिटी इज होली एंड सोली डिपेंड ऑन ISMs, इंटरनल सर्विस मेजर्स। सो मैं उनसे ये चीज पूछ सकता था कि सर
कोई ऐसा मेजर हो फॉर एग्जांपल जिसको ब्रांच एक्सेप्ट ना कर रही हो कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा वो कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा हमारा कंट्रोल होगा, बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग होगी हम पे, तो हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो है आपने क्या किया था, जब उन फॉर एग्जांपल जब आप ब्रांचेस से, मैंने आपको बताया रिपोर्ट साइन करवाने जाते हैं, समटाइम ब्रांचेस बहुत एग्रेसिव हो जाती है, वो रिपोर्ट फेक भी देती है, साइन भी नहीं करती। तो उस सिचुएशन पे फिर आप क्या करते हैं उन उन मतलब कि अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये चीजें भी मैंने उनसे वहां पे पूछी थी, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं ऑलरेडी रिसर्च करके गया था, जो मेरे एक दो जानने वाले दूसरे बैंक्स के अंदर सर्विस क्वालिटी के अंदर, तो मेरे पास सर्विस क्वालिटी का रोल क्या होता है, इस तरह मैं अपने आप को प्रिपेयर करके गया था, जिस तरह आप लोग भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब क्वेश्चन उससे पूछें तो जो वो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछ रहा था ना, आप फिर उससे भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप खुद भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि मैं अपने जो इंटरव्यूअर है उससे पूछ सकता हूँ, लाइक इफ ही आस्क दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आप ये चीजें उनसे पूछ सकते हैं। साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है, द स्मार्ट जॉब सीकर प्रिपेयर्स क्वेश्चंस टू आस्क days before the interview, adding any additional queries that might arise from the interview. So वही बात आ गई कि ये क्वेश्चन आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जो मैंने फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दी कि आप उसी वक्त बैठे हुए भी वो जो सवाल पूछ रहा है ना, आपको दिमाग में ये रहना कि जब मुझसे ये पूछेगा ना डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो फिर मैं ये सवाल इससे पूछ के इसका इंटरव्यू लेना, उसका इंटरव्यू लेना आप स्टार्ट कर दें। दैट इज वेरी लाइक यू कैन से a backdoor approach that you can use when you go for this kind of questions. तो जब आप उससे ही उसकी चीजें पूछना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वहां पे इंटरेस्ट उसको क्रिएट होगा, वो बोलेगा इसको भी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाओ कि नेक्स्ट जो मेरा टास्क है उसके अंदर परफॉर्म कैसा करता है। सो ये भी आप फॉलो कर सकते, आपको करना चाहिए फॉलो, तो आपको काफी बेनिफिट होगा इसके अंदर। उसके साथ इंसाइटफुल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं यूज करता था अपने टाइम पे, और अभी भी, यानी कि मेरे इंटरव्यूज वगैरह जब होते हैं तो उसमें मैं ये चीजें यूज करता हूँ। उसके अंदर 6 स्मार्ट क्वेश्चंस टू आस्क द इंटरव्यूअर। द फर्स्ट इज हाउ इज द परफॉर्मेंस मेजर इन दिस जॉब। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं व्हेन ही आस्क दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। देन यू कैन गो फॉर कैन यू डिस्क्राइब अ टिपिकल डे फॉर दिस पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे मैं जब विजिट पे गया था तो एक ब्रांच मैनेजर रिपोर्ट साइन नहीं कर रहा था। उसने बोला यार ये छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या थी कि एटीएम की जो इंटीमेशन कॉल होती है ना, उसमें उसने डेट मेंशन नहीं की हुई थी रजिस्टर के अंदर कि इस डेट को मैंने कॉल किया था। मैंने उसको मार्क कर दिया। मैंने बोला नहीं यार, मैं ये आपने मिस्टेक की, आप नेक्स्ट टाइम नहीं करें, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। वो रिपोर्ट साइन नहीं कर रहा था। सही है, तो ये मेरे पास सिचुएशन आई थी। फिर मैंने अपने जो हेड थे उनको बताया सर ये रिपोर्ट साइन नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँ, उन्होंने रिपोर्ट फेंक दी है। तो बोलते हैं ठीक है आप लिख दो कि ब्रांच मैनेजर रिफ्यूज टू साइन द रिपोर्ट, आप ब्रांच से चुपचाप निकल के आ जाओ। फिर उस बिना ब्रांच मैनेजर की काफी खिंचाई हुई थी। तो ये एक सिचुएशन जो मेरे पास आई थी, तो ये इस आंसर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया कि कैन यू डिस्क्राइब अ टिपिकल डे फॉर दिस पोजीशन। तो ये आप उससे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तो मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूंगा, कोई मुझसे ये सवाल पूछता है, तो मैं इस तरह की सिचुएशन उसको बता सकता हूँ, और आप ये क्वेश्चन अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। तो इसके बाद है व्हाट आर द कंपनीज बिगेस्ट चैलेंजेस, and I cannot see the slide. Okay, challenges currently। आप इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अभी कोविड-19 की, कोविड-19 के अंदर काफी सारी कंपनीज हैं वो क्या कहते हैं बैंकरप्ट हो गई हैं, और काफी कंपनीज लॉसेस में हैं, और वो उन्होंने डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दी है। सो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। उसके पर्सपेक्टिव पे अगर हम आज की सिचुएशन पे रखते हुए बात करें, ये क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट वर्किंग फॉर दिस कंपनी, राइट। सो ये वो चीजें हैं जो आप उनसे पूछेंगे ना, तो वो भी इंटरेस्टेड होगा ये बताने के लिए कि यार ये लाइक अपना पैशन, और यहीं से आपका पैशन भी शो हो जाएगा कि यार ये इंटरेस्टेड है, ये नहीं चाह रहा कि जल्दी से इंटरव्यू खत्म हो। हम लोग यही समझते हैं कि जब इंटरव्यूज हम लोग दे रहे होते हैं ना, तो इंटरव्यू हमारा बस जल्दी से खत्म हो और हम लोग बस जाएं। हमारा जितना शॉर्ट इंटरव्यू होगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि बहुत गलत है। जितना इंटरव्यू आपका एक्सटेंडेड इंटरव्यू होगा ना, उतना ज्यादा आपके चांसेस है कि आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए और जॉब के लिए वो आपको हायर करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आप जरूर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू। व्हाट आर द इमीडिएट चैलेंजेस एंड रिक्रूट फेसेस इन दिस जॉब। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप रिक्रूटिंग फेसेस में होते हैं। फिर देन व्हाट स्किल्स डज द आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन हैव। हालांकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पता है, तभी आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन आप उससे
पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं ना, तो ये वो क्वेश्चन है जो काफी सेंसिबल है और पूछते हुए भी आप उससे अच्छे लगेंगे। तो ये वो चीजें जब आप नेक्स्ट टाइम अपने इंटरव्यू में जाए ना, तो ये चीजें ट्राई करके देखेगा जो मैंने आपको बताई है, तो 110% आप देख लेगा, आप लोगों को पहले ही कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। कुछ जगह पे फर्स्ट इंटरव्यू होते हैं, ज्यादातर जगह पे सेकंड और थर्ड इंटरव्यूज होते हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे मिजान हो गया, दुबई इस्लामी हो गया, बैंक इस्लामी हो गया, बैंक अल हबीब हो गया। और तो ये वो चीजें हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको 2 से 3 इंटरव्यूज से गुजरना पड़ता है। तो फर्स्ट इंटरव्यू आपका डिसाइड करता है, सेकंड इंटरव्यू, सेकंड अगर सेकंड इंटरव्यू में आ गया, थर्ड इंटरव्यू आपका क्लियर है। तो यही चीज होती है कि इस तरह आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे आप उनसे अगर पूछें अपने इंटरव्यूअर से। So let's move on to the next part. Okay, then this is also very important, and that comes in a very that shows your etiquettes, right? So जब आपका इंटरव्यू हो जाए ना, तो एक अच्छी सी उसको ईमेल लिख दे थैंक यू की, दैट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर एन इंटरव्यू एंड आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस इंटरव्यू। जब आपको बस उसको बताना है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में तो आपने अब उस बारे में, उस आदमी के बारे में जज कर लिया। ये जो सवाल जो मैंने आपको दिखाए थे, ये क्वेश्चन भी आपने उससे पूछ लिए, इन क्वेश्चंस का उसने क्या रिप्लाई किया ये आपको जरूर याद रखना है भाई। कोशिश करेगा इन क्वेश्चंस को याद रखें। जब आप उसको थैंक यू ईमेल लिख रहे होंगे, तो ये चीज जरूर लिखें कि क्या चीजें आपने उससे प्रेजेंटेशन में डिस्कस की थी और इंटरव्यू में डिस्कस की थी, और वो चीजों में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं, उसको याद करते हुए एक थैंक यू ईमेल उसको जरूर लिखते हैं, जो कि एक कर्टेसी शो करता है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते। आज तक मैंने भी कभी नहीं की भाई, लेकिन मैंने ये अपने आखिरी इंटरव्यू में की थी, जब मैं बैंक लबीब का इंटरव्यू मैंने दिया था, और उसके बाद मैं इधर आ गया था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इधर आ जाऊं, तो या तो मैं बैंक लबीब में रहूं। तो मैंने वहां पे थैंक यू ईमेल लिखी थी। तो ये वो पार्ट था जो मैंने किया, और उस बंदे को मैंने ये भी बताया, सर थैंक यू सो मच फॉर हायरिंग मी, बट द प्रॉब्लम इज आई हैव गॉट अ वीजा and I'm going to Austria for my masters. So what do you prefer? Should I go for it or not? That is why I'm telling you that I cannot carry on this job. So he said that was very nice from your side. That shows the that actually shows your education. At least you have told me about it, that you're leaving the country and you cannot ज्वाइन दिस पोजीशन। अगर ये होता है मैं उसको बगैर बताए चले जाता, ठीक है, तो फिर वो इंप्रेशन क्रिएट किस पे बुरा होता, वो मेरे उन मैनेजर पे होता जिन्होंने मुझे वहां रेफर किया था। बात समझ में आ रही है? तो आपकी एक पूरी चेन बंदी हुई होती है, सही है, और आपकी चेन के साथ साथ मेन चीज होता है आप अपने इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपके इंस्टीट्यूट की भी बदनामी होगी। आपने देखा होगा काफी दफा ये होता है, काफी जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ के लोग जो है उनको काफी सफर करना पड़ता है अपने जब वो इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाते हैं, और कभी कभार कॉल भी नहीं आती। तो सारा इशू ये है कि जो बंदा पहले वहां पे गया होगा ना, उसने 2 या 3 बंदों ने ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया होगा। और आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक यस्टरडे, दैट इज कॉल्ड कंफर्मिटी बायस, जिसके अंदर एक बंदा कोई ऐसी हरकत करता है ना, तो फिर हम ये परसीव कर लेते हैं कि बाकी सब भी ऐसे ही होंगे। जैसे कल मैंने नाइजीरियंस की एग्जांपल दी थी कि नाइजीरियंस यहाँ पे थोड़े बहुत क्राइम में इन्वॉल्व है, लेकिन सारे नाइजीरियंस नहीं है। लेकिन उन्होंने एक नाइजीरियन के चक्कर में बाकी सारे नाइजीरियंस को बोला कि ये भी सारे क्राइम करते होंगे, तो इनकी चेकिंग उस तरह करो जिस तरह बाकी लोगों की नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको थैंक यू ईमेल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं उस ईमेल के अंदर आप उनको, as we have already seen from previous tips, common courtesy and politeness go far in the interviewing. Then the importance to thanking each person who interviews, you should come as no surprise, start the process while at the interview, thanking each person who interviewed you. So I think it's very basic. Writing thank you email and notes shortly after the interview will not get you to the job offer for sure, but doing so will certainly give you, an edge to get it off an interview. So these are some important things that you can go for an interview, and later on I will show you some example that what kind of questions that you can face when you go for an interview, and what should be the response you have to do and you have to give in return. So any question please so far? So you can raise your hand, or you can ask, you can unmute your question mic, and you can ask any of the questions. No questions? Yeah, no questions.
ऑलराइट, सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैंने इंटरव्यू में क्या किया था जब मैं ऑस्टिन एम्बेसी इस्लामाबाद किया था। अब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के अंदर, वो जो जिसपे आपको अभी वर्क ऑन करना है। ये चीजें तो आप सीख लेंगे कि फॉर्मल अटायर क्या होता है, क्या पहन के जाना है, क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। लेकिन जब इंटरव्यू के अंदर आप चले जाते हैं ना, दो चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक मैटर करती है। पहली चीज ये है कि आपकी इंग्लिश, इंग्लिश को जितना अच्छा आप कर सकते हैं ना, और जितना अच्छे एक्सेंट में उससे बात कर सकते हैं, मुंह टेढ़ा करके आप बात कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ आपकी जॉब पक्की है। मेरे जितने भी इंटरव्यूज क्लियर हुए हैं भाई, वो सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। और मिजान का तो उसी वक्त मुझे उन्होंने ऑफर दे दिया था कि भाई आप जो है आपकी आपकी हम एक दो दिन में वैल्यूएशन करके आपको बता देंगे आपको ज्वाइनिंग कब से करनी है। उस बंदे ने ये तक कह दिया था। एक ये चीज, और आपका जो एमएस ऑफिस है इस पे आप कमांड हासिल कर लें, प्रेजेंटेशन वगैरह पे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड पे, और साथ एमएस एक्सेल। ये चीजें आप, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हर, ये सिर्फ मैनेजमेंट लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मैनेजमेंट फील्ड के अंदर जा रहे हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर के अंदर, उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो स्किल्स को वो इतनी पक्की कर लें, क्योंकि यही दो चीजें जो आपकी हर फेस में वहां पे काम आएंगी। अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हैं तो आपका लाइक इंटरेक्शन कस्टमर से, आपके फॉरेन क्लाइंट से बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे इंग्लिश आपकी रिक्वायर्ड है। साथ साथ आपको एक्सेल भी आना चाहिए। आप अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उससे भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनली अपने इंटरनल कस्टमर से होगा, यानी कि आपके जो वर्कर्स हैं। उसके अलावा एचआर के अंदर तो सारी ट्रेनिंग का काम ही जो है वो कम्युनिकेशन का है। तो ये चीज आप अपनी नोट कर लें कि ये दो चीजें आप लोग को लाजमी अपनी ग्रेजुएशन से पहले पहले कंप्लीट, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कर लें। ये वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको किसी भी इंटरव्यू में विन करवा सकता है। तो मेरे साथ सिचुएशन हुई थी ऑस्टिन एम्बेसी इस्लामाबाद में, आपको मैं बता रहा हूँ कि लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग की वजह से मैं बच गया, और सिर्फ कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, और किस तरह कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा क्या कहते हैं, रेजिडेंस परमिट के लिए मैं वहाँ अपनी फाइल सबमिट करवाने गया ऑस्टिन एम्बेसी इस्लामाबाद। अब सीन क्या हुआ वहाँ पे कि वो जो ऑस्ट्रियन थी वो उसने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। अच्छा, ये लोग लाइक बहुत क्लेवर होते हैं, ये लोग एक सवाल को ना काफी डिस्कशन के बाद दोबारा पूछते हैं कि ये अब क्या जवाब देता, कि ऐसा तो नहीं है अपने जवाब से डाइवर्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। तो उसने मुझसे पहले तो नॉर्मल पूछती रही अपने बारे में, बताओ अच्छा क्यों जाना चाहते हो ऑस्ट्रिया, क्यों तुमने चूज किया। तो मैं ऑस्ट्रिया की पूरी रिसर्च करके गया था कि ऑस्ट्रिया रिचेस्ट कंट्रीज में से आता है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑस्ट्रिया के हैं, और उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ की। तो ये सब मैं पढ़ के गया। फिर उसने बोला कि खाली तुमने जोहानस कैपलर यूनिवर्सिटी को की चूज किया। फिर मैंने बोला ये वर्ल्ड रैंकिंग में आती है, यहाँ से जो मैं कोर्स करना चाहता था वो वहाँ पे मुझे मिला। उसके अलावा फिर उसने बोला कि अच्छा तुम्हारे पास तो शेंजन वीजा है, तुम तो मेरे ख्याल से जब वापस नहीं आओगे तुम वहीं पे सेटल होगे ना। तो ये चीज थी, मुझे पता था कि इसका आंसर मुझे क्या करना है, कि मुझे वापस ही आना है। मैंने बोला मुझे वापस आना है, और मैं उनकी कंट्री के बारे में रिसर्च क्या करके गया था कि यहाँ पे जो है ना ये सोशल स्टेट है, सही है। तो यहाँ पे जो है ना फ्री एजुकेशन, और यानी कि स्कूल में, कॉलेजेस में, और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन पूरी फ्री है। तो मैं पढ़ के क्या कहता है, ये है सोशल स्टेट। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो वापस आना है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, और एज अ मैनेजर वहाँ पे ज्वाइन करूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये डिग्री कर कर आओ, और उसके साथ साथ जब मैं वापस आऊंगा तो मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा जहाँ पे मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन दूंगा। तो मैंने उनकी चीजें उन पे ही रख के मैंने बातें उनको बोली। फिर उसने बोला, नॉर्मल वो सवाल पूछती गई पूछती गई पूछती गई, तकरीबन 15 मिनट के बाद उसने सेम दोबारा सवाल पूछा, अच्छा तुम वापस तो नहीं आओगे ना। तो मैंने बोला मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट उसमें आंसर क्वेश्चन में आपको बता दिया। ने दोबारा वो चीज़ पूछी, मैंने वापस ही आना है, मुझे वहाँ स्टे नहीं करना, मेरा 2 इयर्स का बैच मास्टर्स है, और मुझे वापस आना है। तो इस तरह देखा, वो आपको इस तरह जज कर रहा होता है। इसी तरह इंटरव्यू के अंदर आपके यहाँ पर भी होता है कि वो चीज़ें आपसे दोबारा पूछ सकता है। तो यू हैव टू बी लाइक एक्टिव लिसनर। अगर आपने एक्टिव लिसनिंग आपकी नहीं है तो आपका इंटरव्यू पूरा अच्छा जा रहा होगा, एंड में खराब भी हो सकता है। तो इस तरह हुआ। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि झूठ बोलना है लेकिन कॉन्फिडेंस है। अब वो मैंने कैसे बोला वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके, सो झूठ कैसे बोला मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे बोला कि अच्छा अब आप अपने ये जो आपने 2 मिलियन की स्टेटमेंट शो करी है, इसका प्रूफ दें कि ये प्रूफ कहाँ से आया है। अच्छा, प्रूफ तो मेरे पास जो था, जो हमारा पुराना घर था वो बिका था, उसको मैंने जिसका जो सेल एग्रीमेंट था उसको रेंट एग्रीमेंट में कन्वर्ट करवाया बैक डेट पे। और एक घर जो हमारा था उसको हमने दिखाया कि भाई वो हमारा रेंट पे है। एक शॉप थी छोटी सी, उसको दिखा दिया कि वो रेंट पे, उससे इतना रेंट आता है। तो उसने बोला कि अब आप जस्टिफाई करोगे ये आपको चीजें जो है ये 2 मिलियन कहाँ से आए। तो मैंने, हालांकि कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने जो है वो
उसको झूठ बोलते हुए बता दिया कि ये चीज सब हमारी है और ये मैं रेंट पे करता हूँ, ये मेरी घर वालों की इनकम है और ये हमारा हम लोग, क्योंकि मैं टैक्स बेयर उसमें टैक्स बेयर स्लैब में आता नहीं, क्योंकि मेरी जो साल की इनकम है वो 12 लाख से कम है, तो मैं टैक्स पे नहीं करता। तो इस तरह करके मैंने अपनी बात को झूठ बोला मैंने उसको, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोला, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट रखते हुए। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसने भी नेक्स्ट डे बोला कि आप अपना वीजा सबमिट करवा दें। सो आपको मैं एग्जांपल्स क्यों दी मैंने कि ये चीजें मैंने ऑलरेडी अपने ऊपर अप्लाई की हैं और ये मुझे बेनिफिट की हैं हर जगह पे। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो ये आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी आपके इंटरव्यूज में, और 110% करेंगी। और उसके अलावा और भी कोई चीज होगी जो मेरे दिमाग में आएंगी, वो मैं बाकी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट